Hello everyone, welcome back. So today we are going to start with the leftover topics which are there in international relations and international current affairs. Let's start with Stay Safe Online Campaign and G20 Digital Innovation Alliance. अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है ये G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस एज पार्ट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी. इसके हाइलाइट्स क्या हैं ये देख लेते हैं. As part of India's G20 presidency, the Minister for Electronics and Information Technology, Communication and Railways, Shri Ashwini Vaishnav, have launched Stay Safe Online campaign and the G20 Digital Innovation Alliance, G20 DIA. इसको क्या बोलते हैं? G20 DIA इसे बोला जा रहा है, G20 DIA. The event was graced by Shri Amitabh Kant. Amitabh Kant, remember please, हमारे official G20 शेरपा हैं. डिग्नेटरीज फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, चीफ गेस्ट एक्सेट्रा, ये सब लोग आए थे यहाँ पे. माइटी, द नोडल मिनिस्ट्री फॉर G20 इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG has represented India in numerous working groups and ministerial sessions during previous presidencies. Stay Safe Online Campaign and G20 Digital Innovation Alliance, याद रखिए. Stay Safe Online Campaign और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस को अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया था. ये दोनों पार्ट हैं ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी. NSA मीट विद सेंट्रल एशिया. NSA आप सब लोग जानते हैं, अजीत डोभाल हैं हमारे NSA. उनकी मीटिंग हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की इंडिया और सेंट्रल एशिया की मीटिंग हुई थी. ये पहली ऐसी मीटिंग थी. इट इज़ रिटन ओवर है, इट वाज द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स. कब हुई? December 6, 2022 में हुई, न्यू दिल्ली में हुई. ये क्वेश्चन आ सकता है, मीटिंग कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है. NSAs किस किस के NSAs आए थे? कौन कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी? Kazakhstan was there, Kyrgyzstan was there, Tajikistan was there, Uzbekistan was there. Turkmenistan was represented by its ambassador in New Delhi. तो even though Turkmenistan participated, but उनके NSA नहीं आए थे. सेंट्रल एशियन कंट्रीज याद करने का तरीका क्या क्या होता है ये देख लीजिए. K2, T2, U. कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान. हमेशा इस तरीके से कुछ ना कुछ निमोनिक टेक्निक से इफ यू रिमेंबर, इट इज़ ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर. यही डिफरेंस होता है नॉर्मल स्टूडेंट्स और टॉपर्स में. सबका एक जैसा मेमोरी स्पैन होता है, सबकी एक जैसा तरीका होता है रटने का, बट वो कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिनसे हमें याद करना चाहिए. ओके, मूविंग ऑन. NSAs and secretaries of Central Asia agreed that greater connectivity must be given high priority to increase economic and commercial links. Greater connectivity की बात हुई है. India invested in the Iranian port of Chabar, the International North-South Transport Corridor (INSTC) to address the connectivity issue. The Ashgabat Agreement जो है, which facilitates the movement of products among members, was also signed by New Delhi. अशगाबाट एग्रीमेंट जो कि मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स अमंग मेंबर्स फैसिलिटेट करता है, वो भी न्यू दिल्ली ने यहाँ पे साइन किया. Ashgabat Agreement. Prime Minister Narendra Modi hosted the first India Central Asia Summit in virtual format on 27 January 2022. The first India Central Asia NSAs meet coincided with the 30th anniversary of establishment of diplomatic relations between India and Central Asian countries. Fifth, the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral, Technical and Economic Cooperation Summit, BIMSTEC. BIMSTEC is a multilateral regional organization established with the aim of accelerating shared growth and cooperation between littoral and adjacent countries in the Bay of Bengal region. Bay of Bengal region में ये BIMSTEC है. On 30th March 2022, BIMSTEC grouping's 5th summit took place virtually, hosted by Sri Lanka. किसने होस्ट की थी? 30th मार्च 2022 को 5th समिट बिम्स्टेक की श्रीलंका ने होस्ट की है. हाइलाइट्स क्या है समिट की? थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल. अगेन, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल. Let's see what BIMSTEC is. It has a total of 7 member countries, 5 from South Asia including Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Sri Lanka, and 2 from Southeast Asia, Myanmar and Thailand.
It came into being on 6th June 1997 through the Bangkok Declaration. एक नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि दिस केम इनटू बीइंग इन 1997 एंड स्टिल दिस इज ओनली द 5th समिट विच टुक प्लेस. बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये बीइंग में आई थी. इट होल्ड्स 21.7% of world's population with a combined gross domestic product of 2.7 trillion. 21.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है और जीडीपी इनका कंबाइंड 2.7 ट्रिलियन होता है. फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022. श्रीवरी चंद्रशेखर जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल. AISFB से बोला जा रहा है. 2022 में हेल्ड हुआ था. कहाँ हेल्ड हुआ है? बोगोर इंडोनेशिया में. बोगोर इंडोनेशिया में हेल्ड हुआ है. होस्टेड बाय आसियान कमिटी ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कॉस्टी भी से बोलते हैं, इन पार्टनरशिप विद इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST थ्रू द नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंसी BRIN ऑफ इंडोनेशिया एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SICC IIT कानपुर. ये सब ऑर्गेनाइजेशन हैं. 1 2 3 4 IIT कानपुर, BRIN, DST एंड COSTI की हाईलाइट्स देख लेते हैं. ASEAN India Startup Festival is a flagship initiative that aims to strengthen cooperation and collaboration in science, technology and innovation. It is between the ASEAN member states and India as highlighted in the Plan of Action for the ASEAN India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity 2021 and to 2025. ASEAN India Startup Festival flagship initiative है. एम क्या है इसका? टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन एंड कोलैबोरेशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. किस किस के बीच में है? आसियान मेंबर स्टेट्स और इंडिया के बीच में है. हाईलाइटेड इन द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द आसियान इंडिया पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड शेयर प्रोस्पेरिटी. इसमें इसे हाईलाइट किया गया है. G20 Summit 2022. Recently, the 17th annual G20 was held in Bali, Indonesia. 17th Summit इंडोनेशिया बाली में हुई थी एंड अभी 18th जो है वो ऑब्वियसली वी ऑल नो इंडिया में है. उसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवरी स्ट्रॉन्गर. रिकवर टुगेदर रिकवरी स्ट्रॉन्गर. अब 18th वाली इंडिया में है जो कि 2023 में है. बाली लीडर्स डेक्लेरेशन देख लेते हैं. यहाँ पे जो हुआ था वो क्या था? कंडेमिंग रशियन एग्रेशन था उसमें. पहली बात तो मोस्टली मेंबर स्टेट्स ने कंडेम किया था वॉर इन यूक्रेन. फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर G20 लीडर्स ने प्लेज किया था टू टेक एक्शन टू प्रमोट फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी. Indians got the presidency of G20 for 2023. This is the first time the country will be holding an international summit of this scale. 19th ASEAN India Summit. ASEAN और इंडिया का 19th summit हुआ था to commemorate the 30th anniversary of ASEAN India dialogue relations. याद रखिए इस बार इंडिया और सेंट्रल एशिया की 30 years of diplomatic relations है और ये 30th anniversary of ASEAN India dialogue relations भी है. The Vice President Shri Jagdeep Dhankar led the Indian delegation at the 19th ASEAN India Summit जो कि हुई थी Phnom Penh कंबोडिया में. India and ASEAN relationship is now elevated to comprehensive strategic partnership. The joint statement proposed expediting the review of ASEAN-India Trade in Goods Agreement AITIGA to make it more user-friendly, simple and trade facilitative. Joint statement हुआ था वो expedite करना चाह रहे हैं ASEAN-India Trade in Goods Agreement AITIGA to make it more user-friendly, simple and trade facilitative. ASEAN and India signed the agreement at the 7th ASEAN Economic Ministers Meet in Bangkok, Thailand in 2009. The agreement, which came into effect in 2010, is sometimes referred to as the ASEAN-India Free Trade Agreement. ये 2009 में भी आया था. आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टीरियल मीट बैंकॉक 2009 में आसियान इंडिया ने जब से इसे साइन किया था इसे आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बोलते हैं. द फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल AISF was held on 27th October 2022 in Bogor, Indonesia. Global Partnership on AI GPAI. Global Partnership on AI GPAI. France, the outgoing council chair, handed over the presidency to India at the third edition of the annual GPAI summit, which was held in Tokyo, Japan in November 2022. फ्रांस ने इंडिया को थर्ड एडिशन ऑफ GPAI में
अपना उसका होस्ट हैंड ओवर किया है। एंड दिस थर्ड समिट वाज हेल्ड इन जापान। India assumed presidency on 21st November 2022. India was represented on third edition by Shri Rajiv Chandrasekhar. हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा है, याद रखिए, श्री राजीव चंद्रशेखर। About GPAI. GPAI is the congregation of 25 member countries including US, UK, EU, Australia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Mexico, New Zealand, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड सिंगापुर। इंडिया ने 2020 में ज्वाइन किया है एज अ फाउंडिंग मेंबर। 2020 में GPAI बना है। 3 इसकी समिट हो चुकी है, चौथी बाद में होगी जिसका इंडिया प्रेसिडेंट होगा। थर्ड समिट जापान में हुई थी। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 IPRD 2022। IPRD is the apex level global dialogue on maritime strategy held by Indian Navy annually। इंडियन नेवी इससे हेल्प करती है। थीम क्या है 2022 का? ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। एम ऑफ IPRD डील विद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। की हाइलाइट्स क्या है IPRD के? कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन NMF। फर्स्ट IPRD was held in 2018। Fourth edition of dialogue held in New Delhi from 23 November to 25 November 2022 about Indo-Pacific region. The Indo-Pacific region is one of the most populous and economically active regions of the world, which includes 4 continents of Asia, Africa, Australia and America. अभी आपसे कोई पूछे इंडो पैसिफिक रीजन में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें आता है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। 7th Eastern Economic Forum 2022. The Eastern Economic Forum was established by a decree of the President of the Russian Federation Vladimir Putin in 2015 to support the economic development of Russia's Far East. रशिया के Far East के डेवलपमेंट के लिए 2015 में Eastern Economic Forum सेटअप हुआ था and to expand international cooperation in the Asia Pacific region. 2 इसके एम थे to support द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रशियाज फार ईस्ट। पहला एम ये है एंड दूसरा है टू एक्सपैंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 कहाँ पे हेल्ड हुआ था ये? व्लादिवोस्टोक ऑन द फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी FEFU कैंपस रशिया में हुआ है ये। थीम क्या था इसका? द पाथ टू अ मल्टी पोलर वर्ल्ड। The path to a multipolar world. Objective क्या है इसके? The forum aimed to promote the accelerated development of the Far East economy and broaden international cooperation in the Asia Pacific region. Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). On 9 September 2022, Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution पीयूष गोयल उन्होंने अटेंड की फर्स्ट इन पर्सन मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। पहली उन्होंने मीटिंग अटेंड की है, फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग, मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, जो कि हुई थी लॉस एंजलिस में। इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम लॉस एंजलिस, फर्स्ट इन पर्सन मिनिस्टीरियल मीटिंग। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम लॉन्च किया था यूएस ने एंड अदर पार्टनर कंट्रीज ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। कब लॉन्च किया था? 2022 इन टोक्यो जापान। द 14 मेंबर्स ऑफ IPEF आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें अच्छे से याद करना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड द US। सबसे पहले तो हम इसमें आपको याद करने का एक तरीका मैं बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें आप बड़ी बड़ी कंट्रीज़ देख लीजिए जो सुपर पावर्स हैं या जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, US, ऑस्ट्रेलिया, फिर आप देख लीजिए इसमें जापान है, साउथ कोरिया है और न्यूजीलैंड है। उसके अलावा बाकी फिर कंट्रीज़ देखिए कौन सी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, थाईलैंड है, वियतनाम है, फिलीपींस इज़ देयर। इन बड़ी कंट्रीज़ में सिंगापुर को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इंडोनेशिया इज़ देयर। फिर आइलैंड कंट्रीज़ को थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं हम, ब्रूनई, मलेशिया, फिजी। उसके बाद में इंडिया देख लीजिए। तो इस तरीके से कुछ ऐसे चंक्स में याद करेंगे तो ईजी रहेगा याद करना। फर्स्ट I2U2 इंडिया, इजराइल, UAE, USA लीडर्स वर्चुअल समिट।
ये I2U2 कंसेप्शलाइज हुआ था ड्यूरिंग द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द 4 कंट्रीज जो कि 2021 में हुई थी. द लीडर ऑफ अ न्यू क्वाड्रिलेटरल फोरम मेट वर्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम. इस क्वाड्रिलेटरल फोरम के जो लीडर्स हैं पहली बार वर्चुअली मिले. वर्चुअली कब मिले? 2022 में मिले. मेंबर्स हैं इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए. इसका एम क्या है? इट सीक्स टू एम्पावर द पार्टनर्स एंड encourages them to collaborate more closely, resulting in a more stable region. Now let's see, there is some extra information regarding Abraham Accords. The Israel-UAE Normalization Agreement is officially called the Abraham Accords Peace Agreement. Abraham Accords Peace Agreement क्या है? Israel-UAE Normalization Agreement. Initially agreed to in a joint statement by the United States, Israel and United Arab Emirates in 2020. The UAE thus became the third Arab country after Egypt in 1979 and Jordan in 1994 to agree to formally normalize its relationship with Israel, as well as the first Persian Gulf country to do so. Already Egypt और Jordan ने अपने relations normalize कर लिए थे Israel के साथ में. Remember, first country to normalize relations with Israel was Egypt in 1979. उसके बाद में ये third country है and also the first Persian Gulf country to do so. होमवर्क इज जाके देखिए पर्शियन गल्फ कहाँ पे है, कौन सी कंट्रीज पर्शियन गल्फ में आती हैं. G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment PGII. On June 27, 2022, the G7 countries who met at the Leaders Summit in Germany have officially launched the Partnership for Global Infrastructure and Investment PGII. लीडर समिट हुई थी जर्मनी में, वहां पे ऑफिशियली लॉन्च किया है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII. इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज. फंड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलपिंग कंट्रीज में. The project is being seen as the bloc's counter to China's Belt and Road Initiative. Counter देखा जा रहा है Belt and Road Initiative को. The group of 7 leaders pledged to raise 600 billion in private and public funds over 5 years to finance needed infrastructure in developing countries. About the project, the infrastructure plan was first announced in June 2021 ड्यूरिंग G7 समिट इन द UK. पहली बार इसे 2021 में G7 समिट इन द UK में अनाउंस किया गया था. बैक देन US प्रेसिडेंट जो बाइडन हैड कॉल्ड इट द बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W फ्रेमवर्क. इसे B3W फ्रेमवर्क भी कहा गया था. इसे अभी फिलहाल काउंटर देखा जा रहा है ब्रिक्स का. इसका नाम क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं. PGII, G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. G7 कंट्रीज देखिए, जाके चेक करिए कौन सी हैं G7 कंट्रीज. 14th ब्रिक्स समिट 2022. 14th ब्रिक्स समिट कब हुई थी? जून में हुई थी. 23 to 24 जून 2022 के बीच में हुई है. कॉन्फ्रेंस कन्वीन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चाइना. चाइना की चेयरमैनशिप में हुई थी. इट वॉज द थर्ड होस्टिंग ऑफ चाइना. पहली बार उसने ये समिट होस्ट की थी 2011 में, दूसरी बार होस्ट की थी 2017 में एंड नाउ इट होस्टेड अगेन इन 2022. थीम क्या थी? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट. आई रिपीट इट अगेन. फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट. नोट, let's see what this is. India hosted the 13th BRICS Summit on 9 September 2021. 2021 में chairmanship थी हमारे पास BRICS की. It also hosted the BRICS Summit in 2012 and 2016. इंडिया ने कब कब समिट होस्ट की है? 2012 में होस्ट की है, 2016 में होस्ट की है एंड 2021 में भी होस्ट की थी 13th BRICS Summit. अभी वाली कौन सी BRICS Summit थी जो चाइना ने होस्ट की है? 14th BRICS Summit थी. The declaration was based on making instruments of global governance more inclusive, representative and participatory. This was the declaration. Making instruments of global governance more inclusive, representative and participatory. Quad Summit 2022 established in the wake of the 2004 Indian Ocean Tsunami. Indian Ocean Tsunami के wake में इसे establish किया गया था to coordinate humanitarian assistance and disaster relief. The Quad has since become a leading regional partnership dedicated to advancing a common version of the free
and open Indo-Pacific through practical cooperation on diverse 21st century challenges. इसे humanitarian assistance और disaster relief के matter में किया गया था, but over time this has become a more of a forum where we talk about free and open Indo-Pacific and talk about cooperation in the 21st century. इसका वेन्यू था टोक्यो जापान में, हेल्ड हुई थी 2022 में. पार्टिसिपेंट्स थे जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएस. ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? टू रिन्यू क्वाड्स steadfast commitment to a free and open Indo-Pacific region. एडिशन कौन सा था समिट का? 4th एडिशन था. हाइलाइट्स क्या है? क्वाड मेंबर्स ने डिस्कस किए क्वाड के रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज टू द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड द ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. क्वाड मेंबर्स ने लॉन्च किया क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज. रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020. फिनलैंड was named the world's happiest country for the 6th year in a row in the World Happiness Report 2023. 6th time फिनलैंड को वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बनाया गया है. इंडिया was ranked 126 of the 137 countries on the list. बहुत controversial रहा है because India has in fact objections to this index which came out, so you must know इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या थी. 126 थी, टोटल 137 कंट्रीज थी. फर्स्ट वे फिनलैंड रहा है. 2023 मार्च 20 2023 को रिलीज हुआ है. ऑल्सो रिमेंबर वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है मार्च 20 को, इसलिए ये इसी दिन रिपोर्ट रिलीज हुई है. रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क UNSDN. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन रिलीज करता है? UNSDSN. इंडिया की मैंने बताया 126 रैंक रही है. 2002 में इंडिया की रैंक थी 136 अमंग 146 कंट्रीज. बॉटम पे है अफगानिस्तान 137th. अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. ऑब्जर्व डेटा ऑन 6 वेरिएबल. GDP पर कैपिटा पे इसका डेटा देखा है. सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड करेक्शन. दीज आर द इंडिसेस जिस पे डेटा कंबाइन करके ये रिपोर्ट बनाया गया है. Chaired by Prime Minister Jigme Y. Tinley and Jeffrey D. Sachs of the first World Happiness Report was released. 2012 में chairmanship of Prime Minister Jigme Y. Tinley and Jeffrey D. Sachs, the first World Happiness Report was released. The General Assembly of the United Nations in its resolution 66/281 on 12 July 2012 proclaimed 20 March the International Day of Happiness. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? कुछ ये एवरेज लाइफ वैल्यू टॉप 3 कंट्रीज की देख लेते हैं. फिनलैंड की थी 7,804, डेनमार्क की 7,586, आइसलैंड की 7,530. बॉटम 3 कंट्रीज पे थी अफगानिस्तान, 136 पे था लेबनान एंड 135 पे सीरिया लियोन. इंडिया हैज़ द लोअर हैप्पीनेस स्कोर बिहाइंड चाइना. चाइना का 64 था. इट इज़ इवन बिहाइंड नेपाल एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. While Ukraine's ranking improved from 98 to 92 this year despite the Russian invasion, its overall score fell from 5.084 to 5.071 on a scale of 0 to 10. यूक्रेन का ओवरऑल रैंक इम्प्रूव हुआ है इवन दो रशियन इन्वेजन वाज देयर, बट इसका ओवरऑल स्कोर फेल हुआ है. Corruption Perception Index CPI 2022. Recently the Corruption Perception Index was released and world obviously continues to fight corruption. 95% of the countries have made little to no progress since 2017. 2023 में इंडेक्स रिलीज हुआ था. इट इज़ रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? बर्लिन जर्मनी में है. CPI रैंक करता है 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज को. की हाईलाइट एंड रिपोर्ट. द CPI ग्लोबल एवरेज रिमेन्स अनचेंज्ड एट 43 for the 11th year in a row, and more than 2/3 of countries have a serious problem with corruption, scoring below 50. Average score CPI में 43 है for the 11th year in a row, and countries are scoring very poorly in this, scoring below even 50. Top performing countries कौन सी हैं? Denmark scoring 90, tops this index. Second is Finland and third is New Zealand, closely both at 87. As we saw, Denmark, then Finland, then New Zealand, then poorly rank कर रही हैं इंडिया के ऊपर, ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर रैंक कर रही हैं जो कंट्रीज. दीज आर गुयाना, इंडिया, मालदीव्स, नॉर्थ मैसेडोनिया, सुरिनाम एंड तुनीशिया.
बॉटम परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं? सोमालिया 12, साउथ सूडान 13, सीरिया 13, ये सब बहुत पुअरली रैंक करती हैं। द सिग्निफिकेंट डिक्लाइनर्स आर, इनका बहुत डिक्लाइन हो गया है इंडेक्स में, इनके पॉइंट्स गिरे हैं। लग्जमबर्ग, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया का पोजीशन नोटेबली कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ इंडिया के स्कोर में, एंड इट रिमेन्ड एट 85th पोजीशन। हाउएवर द रिपोर्ट रेज कंसर्न ओवर कंट्रीज डेमोक्रेटिक स्टेटस। अर्लियर 2021 में इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ था बाय 1 place फ्रॉम 285 फ्रॉम 86th in 2020 according to the index, except for Bhutan all of India's neighbors are ranked below it। बस भूटान ही एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया की नेबर है और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया से बेटर रैंक करती है, बाकी सारे नेबर्स इंडिया के इंडिया से बिलो रैंक करते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। Transparency International is a non-governmental organization which was founded in 1993 in Berlin, Germany. Non-profit है, action लेती है to combat global corruption with civil societal anti-corruption measures and to prevent criminal activities arising from corruption. Global Terrorism Index 2023, recently 10th edition रिलीज हुआ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का 2023। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ द की ग्लोबल ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन टेररिज्म ओवर द लास्ट डिकेड। जो बेसिकली जो ट्रेंड्स और पैटर्न्स है टेररिज्म में लास्ट डिकेड में, उनके बारे में बताती है। 2022 में रिलीज हुई। इट वॉज रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, अ ग्लोबल थिंक टैंक हेडक्वार्टर्ड इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। IEP से रिलीज करता है, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय टेररिज्म कौन सा है? अफगानिस्तान है। की फाइंडिंग्स क्या हैं? 2022 में डेथ फ्रॉम टेररिज्म फेल बाय 9% to 6,701 डेथ्स and is now 38% lower than its peak in 2015। पीक पे था 2015 पे डेथ्स, अब उससे बहुत कम हो गई है, एंड पिछली बार के कंपेरेटिवली में 9% फॉल देखने में मिला है इस इंडेक्स को, एंड ओवर अराउंड 6,700 डेथ्स वर देयर ड्यू टू टेररिज्म। अफगानिस्तान ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड कंट्री है टेररिज्म से फॉर द 4th consecutive ईयर इन अ रो, डिस्पाइट उसमें डिक्लाइन हुए हैं, तब भी अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम तो है ही, साथ ही साथ में इस्लामिक स्टेट्स और उसकी एफिलिएटेड जो भी चीज़ें हैं वो वर्ल्ड्स डेडलीस्ट ग्रुप रहा 2022 में। Sahel is the most impacted region, representing 43% of the global terrorism deaths, 7% more than the previous year। Sahel ये region है, आप ये देखिए ये कहाँ पे है। Status of India. India is ranked 13th on the index, marking a marginal decrease from the previous year। India को 13 रैंक करते हैं इंडेक्स में, मार्क करते हैं marginal decrease from the previous year। 13th। पाकिस्तान 6th नंबर पे है, श्रीलंका 29th पे है, नेपाल 36 पे है, बांग्लादेश 43 पे है। ये सब कंट्रीज इंडिया के बिलो रैंक करती हैं, सो मीन्स दे फेयर बेटर देन इंडिया। द ओनली 2 नेबरिंग कंट्रीज विच फेयर पुअरर देन इंडिया आर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तबकि इंडिया में चेंज हुआ है, डिक्रीज हुए हैं टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स में। सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स SPI 2023। द सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है ऑफ वरीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ रिस्क अक्रॉस कंट्रीज, ऑफरिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू सिटीजन्स परसेप्शन ऑफ सेफ्टी अराउंड द वर्ल्ड। कि बेसिकली सिटीजन का परसेप्शन क्या है सेफ्टी को लेके, उसके बारे में ये बताता है। रिलीज किया है इसने Lilith's Register Foundation and the Institute of Economics and Peace, IEP। Lilith's Register Foundation and the Institute of Economics and Peace, सेकेंड एडिशन है इसका। हाईलाइट्स देख लेते हैं। द कंट्री वॉज मोस्ट इम्पैक्टेड इन द SBI, वो माली था, which has experienced 2 recent coups and has been racked by multiple violent conflicts। 2021 में SPI इम्प्रूव हो गया था ग्लोबली अक्रॉस 2 डोमेन्स, फूड एंड वाटर एंड वायलेंट क्राइम, एंड डिटोरिएटेड इन 2, सीवियर वेदर एंड मेंटल हेल्थ। इन दोनों में डिटोरिएट किया है सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स। इम्प्रूव किस में हुआ है? फूड एंड वाटर में और वायलेंट क्राइम्स में। लीस्ट रिस्क इम्पैक्टेड कंट्रीज इन द 2023 SPI में कौन कौन है? उज्बेकिस्तान, UAE, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, एस्टोनिया। सबसे मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज कौन है? माली, सीरिया लियोन, गिनिया, रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो, मोज़ेम्बिक। इसमें सेफ्टी में लोगों को सबको बहुत प्रॉब्लम लगता है इन सब कंट्रीज़ में, एंड दीज आर द लीस्ट इम्पैक्टेड, ऑल दीज कंट्रीज़। उज्बेकिस्तान, UAE, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, एस्टोनिया।
Uzbekistan recorded the best overall score, while Mali recorded the worst overall score. Sub-Saharan African countries are the most risk impacted in the world. India is positioned at rank 97 with a score of 0.320. The ranks of the neighboring countries of India: China rank 9, score 0.113, Pakistan rank 29, score 0.159. SIPRI Trends in International Arms Transfer 2022 report. India was the world's largest arms importer between 2018 and 22, accounting for 11% of global imports, according to fresh data. सबसे ज़्यादा बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर इंडिया रहा है पूरे वर्ल्ड का 2018 और 22 के बीच में. 11% ऑफ द ग्लोबल आर्म्स इम्पोर्ट किए इंडिया में. दिस डेटा वाज रिलीज्ड बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI. The volume of international transfers of major arms in 2018 to 22 was 5.1% lower than in 2013-17 and 4.8% higher than in 2008 and 12. The 5 largest arms exporters कौन से हैं 2018-12 में? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी. दीज 5 सबसे ज़्यादा आर्म्स भेजते हैं दूसरी कंट्रीज़ में. टुगेदर ये 76% ऑफ द वर्ल्ड्स आर्म्स एक्सपोर्ट्स को काउंट करते हैं. यूएस के जो आर्म एक्सपोर्ट्स हैं अकाउंटेड फॉर 40% ऑफ द ग्लोबल टोटल. कितना ज़्यादा यूएस पैसे कमाता है आर्म्स बेच के, आप लोग ये देख सकते हैं. 40% ऑफ द टोटल वो अकाउंट करता है. 5 लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन 2018-12 कौन से हैं? इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना टुगेदर रिसीव 36% ऑफ द वर्ल्ड्स आर्म्स इम्पोर्ट. इंडिया with an 11% share of total global arms imports. India was the world's biggest importer of major arms in 2018-12, a position it held for the period 1993-2022. Russia was the largest supplier of arms to India in both 2013-17 and 2018-22. International Intellectual Property IP Index 2020, India ranks 42nd among 55 leading global economies. 42nd rank करता है India among 55 leading global economies on the 11th International IP Index released by US Chamber of Commerce. International IP Index benchmark करता है IP framework को in 55 global economies across 50 unique indicators. इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स कब रिलीज हुआ था? फरवरी 2023 में रिलीज हुआ था. इट वाज रिलीज्ड बाय यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स. की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं? मोरक्को, थाईलैंड, वियतनाम लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट्स इसमें देखे गए ओवरऑल स्कोर में एट 2.5%, 2.5%, 2.02% रिस्पेक्टिवली. एशिया हैज द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन द रीजनल एवरेज स्कोर. रशिया का स्कोर ड्रॉप हो गया 21.62%. इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इंडेक्स सबसे ज़्यादा एशिया का इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया. ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन द रीजनल स्कोर. मोरक्को, थाईलैंड, वियतनाम में भी इसमें बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया. 11th इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स था. इसे रिलीज कौन करता है? यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है. 55 ग्लोबल इकोनॉमीज को ये देखता है. 50 यूनिक इंडिकेटर्स होते हैं. और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 डेवलप किसने किया है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने डेवलप किया था. इज एंकर्ड बाय द नोबल लॉरिएट अमर्त्य सेन्स वर्क. अमर्त्य सेन के वर्क पे एंकर्ड है ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफन फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ वेदर पीपल आर एबल टू बी एंड टू डू डिजायरेबल थिंग्स इन लाइफ. The first HDR was published in 1990 by the United Nations Development Program. 1990 में पहली बार पब्लिश हुआ था. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को इस बार लॉन्च किया था सितंबर 2022 में. लॉन्च करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. उसके बाद में थीम देख लेते हैं अब की बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या था. अनसर्टेन टाइम्स, अनसर्टेन लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड. अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, shaping our future in a transforming world. India ranks 132 out of 191 countries in the Human Development Index. इंडिया की रैंक है 132. कितने में से? 191 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक 132 है. ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रैकिंग ग्लोबल डिक्लाइन. इंडिया की रैंक 2021 में 132 थी, अब 2020 में 131 थी. तो बेसिकली इंडिया का रैंक डिक्लाइन हो गया है, -1.
HDI वैल्यू वर्ल्ड का है 0.732 और इंडिया का है 0.633। ये एवरेज है, एवरेज से कम इंडिया का HDI वैल्यू है। टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। बॉटम 5 कौन कौन सी हैं? साउथ सुडान, चैड, नाइगर, CAR, ब्रुरुंडी। हमारी नेबरिंग कंट्रीज का रैंक देख लेते हैं, किन किन का रैंक इंडिया से बेटर है। श्रीलंका का बेटर है, चाइना का बेटर है, भूटान का बेटर है, बांग्लादेश का बेटर है। इनका हमसे नीचे है रैंक नेपाल एंड पाकिस्तान 143, 161। चाइना इज 73, चाइना इज 79, श्रीलंका इज 73। 2021 में इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वाज रिकॉर्डेड एज 67.2 ईयर्स। Expected years of schooling was 11.9 years, mean years of schooling at 6.7 years, and gross national income per capita 2017 PPP के accordingly was $6,590. Gross national income 2017 के accordingly $6,590. 6. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है? 6.5। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है? 11.9। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है? 67.2 ईयर्स। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022. This basically benchmarks the current state and evolution of gender parity across 4 key dimensions: economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment. इन सब डायमेंशंस पे ये मार्क करता है किसी भी कंट्री को। ये लॉन्ग स्टैंडिंग इंडेक्स है जो ट्रैक करता है प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लोजिंग दीज गैप्स ओवर टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006। ये देखता है कितना टाइम लगेगा इन सब गैप्स को क्लोज करने में। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। 2006 में इसका इंसेप्शन हुआ था। 2022 में से पब्लिश किया गया। कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमने पहले पढ़ा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, किसी का फेवर नहीं करता है ये। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एज आई सेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2006। की फाइंडिंग्स हैं, ग्लोबल जेंडर गैप हैज बीन क्लोज्ड बाय 68.1% इन 2022। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं? आइसलैंड 0.908 इनका स्कोर है, देन फिनलैंड एंड नॉर्वे। बॉटम 3 कंट्रीज कौन सी हैं? कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये आई थिंक, एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इंडिया 135th रैंक करता है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। बहुत पुअर रैंकिंग है इंडिया की इसमें, एंड इज द वर्स्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड इन द हेल्थ एंड सर्वाइवल सब इंडेक्स। हेल्थ एंड सर्वाइवल में तो सबसे पुअर रैंक करता है, 146 पे रैंक कर रहा है। 2021 में इंडिया 140 पे रैंक करता था, चलो उससे थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर वो 156 कंट्रीज में 140 पे रैंक करता था। अब ये 135 146 कंट्रीज में रैंक करता है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स पुअरली अमंग्स इट्स नेबर्स, इट इज़ बिहाइंड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान। सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान परफॉर्म वर्स देन इंडिया इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में सिर्फ ये दोनों कंट्रीज इंडिया से पुअर परफॉर्म कर रही हैं, बाकी सारी हमारी कंट्रीज इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रही हैं इसमें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इट वाज फाउंडेड बाय क्लॉस श्वाब। 16th ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसे रिलीज करता है। जीपीआई कवर करता है 163 कंट्रीज को, कंप्राइजिंग 99.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। की फाइंडिंग्स क्या हैं? एवरेज लेवल ऑफ ग्लोबल पीसफुलनेस डिटोरिएटेड बाय 0.3% इन द 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स। द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका MENA रीजन रिमेन द वर्ल्ड्स लीस्ट पीसफुल। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वर्ल्ड का सबसे लीस्ट पीसफुल रीजन रहा है। यूरोप रिमेन्स द मोस्ट पीसफुल रीजन इन द वर्ल्ड। आइसलैंड इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री, अ पोजिशन इट हैज हेल्ड सिंस द इंसेप्शन ऑफ द इंडेक्स। आइसलैंड सबसे पीसफुल कंट्री है। अफगानिस्तान रिमेन्स द लीस्ट पीसफुल कंट्री, अ पोजिशन इट हैज हेल्ड फॉर द लास्ट 5 years। अफगानिस्तान सबसे कम पीसफुल कंट्री है, आइसलैंड सबसे पीसफुल कंट्री है। तो इसकी रैंकिंग देख लेते हैं। फर्स्ट पे आइसलैंड है, सेकंड पे न्यूजीलैंड है, थर्ड पे आयरलैंड है, फोर्थ पे डेनमार्क है, एंड फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है। याद रखिए, फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, फिफ्थ पे ऑस्ट्रिया है, जिसकी कैपिटल वियना है। इंडिया के नेबर्स की रैंक देख लेते हैं। इंडिया की रैंक तो 135 है,
बाकी नेबर्स बेटर फेयर कर रहे हैं, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओनली पाकिस्तान परफॉर्म्स पुअर देन इंडिया. This was Global Peace Index rankings. Network Readiness Index. India has improved its position by 6 slots and is now placed at 61st rank as per the Network Readiness Index. Network Readiness Index के accordingly इंडिया ने अपनी रैंक improve कर ली और अब 6 slot पे चला गया है. It is released by Portulance Institute, ranks 131 countries. इंडिया की 61st रैंक है, इंडिया का स्कोर है 51.19, एवरेज स्कोर है 49.74. लेट्स सी व्हाट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स इज. इनिशियली इसको 2002 में लॉन्च किया था विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को रीडिज़ाइन किया गया 2019 में बाय इट्स फाउंडर्स एंड को एडिटर्स सौमित्र दत्ता एंड ब्रूनो लैनविन. ये एक इन-डेप्थ एनालिसिस है 131 कंट्रीज का परफॉर्मेंसेज अक्रॉस 4 डायमेंशंस ऑफ डिजिटल रेडीनेस: technology, people, governance and impact. It uses 58 different indicators. फर्स्ट रैंक यूनाइटेड स्टेट्स की है, सिंगापुर की सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक स्वीडन की है. इंडिया की परफॉर्मेंस रैंक थर्ड आउट ऑफ 36 इन द ग्रुप ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज. लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया की रैंक थर्ड है आउट ऑफ 36. इंडिया ने सिक्योर किया फर्स्ट रैंक इन द AI टैलेंट कॉन्सेंट्रेशन, second rank in mobile broadband internet traffic within the country and international internet bandwidth, third rank in annual investment in telecommunication services and domestic market size. Travel and Tourism Development Index 2021, a report titled Travel and Tourism Development Index 2021 Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future was published on May 24, 2022. This report covered 117 countries and accorded India 54th position globally. Earlier was at 34th place in 2009. इस रिपोर्ट को पब्लिश किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने. इसको पहले ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी बोलते थे, पर अब इसे बोलते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स. थीम क्या है इसका? रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर. Index is comprised of 5 sub-indices, 17 pillars and 102 individual indicators. Top 3 countries कौन सी हैं इसमें? First Japan, second United States and third Spain. Global Wind Report 2022 कब लॉन्च हुई थी? April 4, 2022 में लॉन्च हुई है. Launched by Global Wind Energy Council. Objective क्या है इसका? To look up to the country's wind energy installations and capacity. Global wind power capacity is now up to 837 gigawatt, topped by China, followed by United States. India is in report. Globally, India ranks 4th in installed wind capacity with 40.1 gigawatt as of January 2022. Expanded its renewable power capacity by 30% from 2020-21. Added 1.4 gigawatts. इंडिया 4th रैंक करती है इसमें आफ्टर जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्पेन. 40.1 गीगावाट कैपेसिटी है इंडिया की. इंडिया ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपैंड भी की है काफ़ी. इट हैज़ एडेड 1.45 गीगावाट्स. कैपेसिटी एक्सपैंड बाय 30% फ्रॉम 2020 to 21. Democracy Report 2023. Recently in March 2023 VDEM Institute at Sweden University उन्होंने रिलीज किया है डेमोक्रेसी रिपोर्ट फॉर 2023. There are 5 indices used by VDEM to capture democratic values. Egalitarian Democracy Index examines equal access to rights and liberties. India ranked 123 on this index. 123 इंडिया इसमें रैंक किया है. एग्जामिन करता है equal access to rights and liberties. Electoral Democracy Index इवेल्युएट करता है इलेक्शन क्लेनलीनेस एंड लैक ऑफ फ्रॉड को. इलेक्शन क्लेनलीनेस एंड लैक ऑफ फ्रॉड. India's ranking dipped from 100th position in 2022 to 108th this year in Electoral Democracy Index EDI report, while it was 97th in the Liberal Democracy Index LDI. India is far behind nations like Tanzania, Bolivia, Mexico, Singapore and even Nigeria. इन countries के भी इंडिया पीछे है. 100 पोजीशन पे है. 108 में 100 पोजीशन पे है आउट ऑफ 108. 100 पोजीशन से 108 पे डिप हो गया है इंडिया का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में. 108th पोजीशन पे है इंडिया. डेनमार्क फर्स्ट रैंक हुआ था विद द हाईएस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर ऑफ 0.89 इन द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स. डेनमार्क फर्स्ट रैंक कर रहा है.
WJP Rule of Law Index 2022. The World Justice Report has released its 2022 edition of the WJP Rule of Law Index, released on 2022. It was released by World Justice Report. It evaluates 140 countries and jurisdictions around the world. India is ranked 77 out of 140 countries. Key findings क्या क्या हैं? The top 3 country in Rule of Law Index 2022 कौन कौन सी हैं? Denmark, Norway, Finland. The countries with the biggest decline in rule of law this year are Sudan, Myanmar, Haiti, Afghanistan and Nicaragua. इन सब में सबसे ज़्यादा रूल ऑफ लॉ में ड्रॉप हुआ है सुडान, म्यांमार, हाइटी, अफगानिस्तान, निकरगुएना. The countries that improved their rule of law score the most this year are Honduras, Kosovo, Belize, Moldova and United States. ये countries ने improve किया है अपना rule of law index सबसे ज़्यादा. The Global Livability Index 2022 ये assess करता है which locations around the world provide the best or the worst living conditions. To assess the best city, the Global Intelligence Unit EIU has published the Global Livability Index 2022. Austria city Vienna ranked first and Damascus ranked 172nd in the Global Livability Index 2022 excluding Kyiv. ऑस्ट्रेलिया की सिटी रियाना को फर्स्ट रैंक किया गया है, डमास्कस को 172nd रैंक किया है इन ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 एक्सक्लूडिंग कीव. द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022. द टाइम्स हायर एजुकेशन द THE रिलीज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स. टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसे रिलीज किया. रैंकिंग्स बेस्ड थी 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे. की ट्रेट क्या है? दिस ईयर्स रैंकिंग कंप्राइजेस 616 यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 31 कंट्रीज एंड टेरिटरीज. Key findings क्या है? Japan is the most represented nation again this year with 118 institutions, up from 116 last year. China is home to the continent's 2 top universities for the 3rd consecutive year. China में 2 continent की top universities हैं. China is also the 2nd most represented country with 97 mainland Chinese universities in the ranking from 91 last year. 91 की जगह इस बार 97 चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ है. उसमें एक पैलेस्टीनियन यूनिवर्सिटी इज रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम. एक पैलेस्टीनियन यूनिवर्सिटी को भी इसमें लाया गया है. टॉप इंस्टीट्यूशन एज पर द रैंकिंग्स इन एशिया: शिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर, NUS ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है NUS. India's presence in the rankings: India is the 3rd most represented country in the rankings. There are 17 Indian universities in the top 200 as compared to 18 last year. कम हो गया है एक. Indian Institute of Science Bangalore is the only institute to make to the top 50 list with 42nd rank. 42nd rank में इंडिया आता है. Guys, I think हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी. दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर टिल द एंड. डोंट वरी गाइज, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ 6th ऑफ मे तक मैं आपका ये पूरा इनिशिएटिव कवर हो जाएगा. मैं पूरा ये करंट अफेयर्स कवर कर दूंगी. आप लोग सुनते रहिए, पुराने वीडियोस को रिवाइज करते रहिए एंड आई प्रॉमिस यू 6 तक मैं ये सब कुछ कवर करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड.